A very good morning dear aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 28 मार्च को घटित हुई थी. वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of all the government exams. At the end of this lecture, we shall also discuss some important practice questions based on today's discussion. डिस्कस किए गए सारे अभ्यास प्रश्नों के सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन. Beginning with 1737, Battle of Delhi was fought between the Maratha Empire and the Mughal Empire. दिल्ली की लड़ाई मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी. The first Battle of Delhi that took place on the 28th of March 1737 was part of the later Mughal Maratha Wars. 12 नवंबर 1736 को मराठा जनरल बाजीराव मुगल राजधानी पर हमला करने के लिए पुरानी दिल्ली की ओर बढ़े. मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सादत अली खान प्रथम को दिल्ली पर मराठाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजा था. He sent an army of 1,50,000 people along with Sadat Khan I. लेकिन बाजीराव के सबॉर्डिनेट चीफ्स मल्हार राव होलकर और पिलाजी जादव ने यमुना नदी पार कर गंगा यमुना दोअब को लूटा. इसके बाद सादत खान ने ये सोचा कि मराठा पुणे की तरफ चले गए और ये मथुरा वापस लौट गए. बट बाजीराव्स आर्मी एडवांस टू दिल्ली. मुगलों को भयंकर मराठा हमले का सामना करना पड़ा. इसमें उन्होंने अपनी आधी सेना खो दी. This compelled them to ask for all regional rulers to help against the army of Marathas. तो इस लड़ाई का नतीजा क्या था? The Marathas under Bajirao I defeated Mughals in the Battle of Delhi. दिल्ली की पहली लड़ाई में मुगलों की सेना मराठाओं की सेना से हार गई. अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है. वो है 1916 यानी कि 1916. A veteran journalist and a political activist from Kerala, K. Ramakrishna Pillai passed away. केरल के एक पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता रामकृष्ण पिल्लई का निधन हो गया. के रामकृष्ण पिल्लई एक नेशनलिस्ट राइटर, जर्नलिस्ट, एडिटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे. इनका जन्म 25 मई 1878 में ट्रावनकोर में हुआ था. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ये एक फेमस जर्नलिस्ट थे. रामकृष्ण पिल्लई जनवरी 1906 में स्वदेशाभिमानी पत्रिका के संपादक बने. He edited Swadeshabhimani, the newspaper. This newspaper became a potent weapon against the rule of the British and the erstwhile princely state of Travancore and a tool for social transformation. His criticisms of Diwan of Travancore, P. Rajagopalachari and the Maharaja led to the eventual confiscation of this newspaper. रामकृष्ण पिल्लई को 1910 में ट्रावनकोर से गिरफ्तार किया गया था और निर्वासित भी किया गया था. वृत्तांत पत्र प्रवर्तनम and Karl Marx are among his most noted works in Malayalam. This particular book, Karl Marx, was the first ever biography of Karl Marx in any Indian language. So please note that K. Ramakrishna Pillai authored the first ever biography of Karl Marx in an Indian language. 28 मार्च 1916 में 37 की उम्र में इनका निधन हो गया. Let us move on to the next topic which is most important from our examination perspective. That is 1927, birth of an activist and women's right advocate Veena Mazumdar. एक कार्यकर्ता और महिला अधिकारों की अधिवक्ता वीना मजुमदार का जन्म हुआ था. डॉक्टर वीना मजुमदार का जन्म हुआ था कोलकाता में. She is an Indian academic, left-wing activist and feminist. She was a pioneer in women's studies in India.
She was also a leading figure of the Indian women's movement. ये सेंटर ऑफ वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज का फाउंडिंग डायरेक्टर भी थी. Center of Women's Development Studies is an autonomous organization. It was established in the year 1980 under the Indian Council of Social Science Research. Also note that Dr. Veena Mazumdar दिल्ली के सेंटर फॉर विमेंस डेवलपमेंट स्टडीज के नेशनल रिसर्च प्रोफेसर भी थी. She was secretary of the first committee on the status of women in India that brought out the first report on the condition of women in the country, which was titled Towards Equality. This report on the condition on women of India highlighted the rise in poverty amongst women in the transition from agrarian to industrial society, as also the decline of sex ratio in India. Veena Mazumdar is known for her work towards women's studies in India. 30th मई 2013 में इनका निधन हो गया. आगे बढ़कर देखते हैं आज के दिन और कौन सी ऐसी खास घटना घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है. वो है 1943 इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एस सत्यमूर्ति पास्ड अवे. स्वतंत्रता कार्यकर्ता एस सत्यमूर्ति का निधन हो गया. Sundar Shastri Satyamurthy was an Indian independence activist and a politician. वो मद्रास प्रेसिडेंसी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस श्रीनिवास अयंगार, सी राजगोपालाचारी और टी प्रकाशम जैसे प्रमुख राजनेताओं में से एक थे. इनका जन्म 19 अगस्त 1887 में ब्रिटिश इंडिया के पुडुकोट्टई स्टेट में हुआ था. कुछ समय तक वकील के रूप में अभ्यास करने के बाद सत्यमूर्ति ने एस श्रीनिवास अयंगार के सुझाव पर राजनीति में प्रवेश किया. He entered politics on the suggestion of his mentor S. Srinivas Iyengar. Satyamurthy participated in protests against the partition of Bengal, the Rowlatt Act, and the Jallianwala Bagh massacre. He was also involved in the protests against the Simon Commission. 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इनको इस आंदोलन में इनके एक्टिविटीज के लिए गिरफ्तार किया गया था. Satyamurthy was the president of the provincial wing of the Swaraj Party from 1930 to 1934. He was also the president of Tamil Nadu Congress Committee from 1936 to 1939. वो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के साथ स्वराज पार्टी के प्रमुख सदस्य बने. He was a member of the Imperial Legislative Council from 1934 to 1940 and also the mayor of Madras. सत्यमूर्ति जी देवदासी सिस्टम को समाप्त करने के आंदोलन में भी शामिल थे. So what is this Devadasi system? Devadasi system was a social evil and a system practiced in the southern parts of India where young girls were donated to the temples by their parents and were considered to be married off to the deity of the temple. देवदासियां अपने पूरे जीवन भगवान को समर्पित कर देती थी. This was a social evil prevalent at that point in southern parts of India, and S. Satyamurthy was against this Devadasi system. Please note that he was also instrumental in setting up of the Music Academy of Madras. Satyamurthy's work led him to being called as Dhirar. He earned this epithet because of his work and activism. A stamp commemorating him was released in 1987. On the 1st of October 2002, a statue of S. Satyamurthy was unveiled in the Parliament House by APJ Abdul Kalam. हार्ट फेल्योर के वजह से 28 मार्च 1943 में इनका निधन हो गया. अब डिस्कस करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस. नोट दैट ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस टुडे. अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिए. प्लीज राइट द करेक्ट आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following authors wrote the first ever biography of Karl Marx in an Indian language? निम्नलिखित लेखकों में से किसने सबसे पहले
कार्ल मार्क्स की आत्मकथा भारतीय भाषा में लिखी? ऑप्शन ए सीपी गोविंद पिल्लई, ऑप्शन बी के रामकृष्ण पिल्लई, ऑप्शन सी लाला हरदयाल या ऑप्शन डी अब्दुल खादिर मौलवी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ दिल्ली फॉट बिटवीन? दिल्ली की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए मराठास एंड द मुगल्स, ऑप्शन बी मराठास एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद, ऑप्शन सी मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली या ऑप्शन डी मराठास एंड नादिर शाह। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन पॉलिटिशियन was given the epithet धीरर? किस भारतीय राजनेता को धीरर नामक विशेषण दिया गया था? ऑप्शन ए एस सत्यमूर्ति, ऑप्शन बी एस श्रीनिवास अयंगार, ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी या ऑप्शन डी टी प्रकाशम। अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डॉक्टर वीना मजुमदार इज कंसिडर्ड अ पायनियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? डॉक्टर वीना मजुमदार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं? ऑप्शन ए विमेन स्टडीज यानी कि महिलाओं के अध्ययन, ऑप्शन बी इंडियन स्पेस प्रोग्राम यानी कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, ऑप्शन सी इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम या ऑप्शन डी एनिमल राइट्स मूवमेंट यानी कि पशु अधिकार आंदोलन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, एस सत्यमूर्ति opposed which of these social practices? एस सत्यमूर्ति ने इनमें से किस सामाजिक प्रथाओं का विरोध किया? ऑप्शन ए सती, ऑप्शन बी चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह, ऑप्शन सी देवदासी सिस्टम या ऑप्शन डी पर्दा सिस्टम। With this question we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो। If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparations. Thank you for watching.